Hello students, once again I Hemant welcome you at Hemdisha English classes extra class. Today I am happy to summarize the lesson from Snapshots 11 class. Name of the lesson is Birth, written by A.J. Cronin. This is the lesson number 7 from Snapshot 11 class, Birth, written by A.J. Cronin. So let us start the summary. This story narrates how a medical fresher handles a case of child delivery. He applies all his medical knowledge and instincts for doing so. Further, the story states the excitement of doctor and his team. In the beginning, the story describes how Andrew Manson recently passed out from medical college finds Joe Morgan waiting for him to attend his wife as she was expecting her first child in 20 years. After an hour long, the harsh struggle, a child was born toward the dawn, but it was lifeless. Andrew was terrified. He looked to the mother who needed immediate attention. He handed the child to the nurse. He handed over the child to nurse and attended the mother first, who was unconscious. Steadily, her heartbeat strengthened, and then he attended the child. The child was not responding, but his continued effort regarding his treatment did not stop. He continues his treatment. Eventually, Andrew succeeds. He flings a sigh of relief as he notices a movement in the child. He hands over the child to the nurse. He has a sense of deep satisfaction that finally he could achieve something great. The young doctor, Andrew Manson, had done a commendable work. He utters those words after he is able to bring a stillborn child back to life, which seems impossible in the beginning. He helped the middle-aged lady in her safe delivery. He utters those words out of deep satisfaction on achieving the impossible task. He has been able to apply whatever he learned in the medical textbook. The above words means that a doctor is a medium through which God grants life to the patients. Andrew acknowledges his effect in the above words. So students, I going to make it in this English summary of the lesson number 7, Birth, written by A.J. Cronin from Snapshot 11th class. If you are new for my channel, I am requesting you to subscribe, like and share so that your all friends will be benefited and you will be able to achieve high score in so far as marks is concerned in your examinations. You will be able to answer the questions. Thank you very much. विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्नैपशॉट्स 11 क्लास के पाठ 7वां है, जिसका कि नाम बर्थ है, जन्म, ए.जे. क्रोनिन के द्वारा लिखा गया है। इसकी समरी आपको बताने जा रहा हूँ। इसको लाइन बाय लाइन सुनिएगा और आप, मेरा पूरा विश्वास है आप इसको सुनने के बाद पूरी कहानी समझ सकते हैं अच्छी तरह से और परीक्षा में अपने आप को तैयार कर सकते हैं अच्छे उत्तर देने के लिए और अच्छे नंबर के लिए आपकी तैयारी कर सकते हैं। इस कहानी में बताया गया है जैसे कभी अभी हाल ही में बना एक डॉक्टर एक बच्चे के जन्म के केस को संभालता है। वो अपना सारा चिकित्सकीय ज्ञान व बुद्धि इसमें लगा देता है। आगे इस कहानी में डॉक्टर और उसकी टीम के उत्साह का काफ़ी अच्छा वर्णन है। शुरू में जो कहानी के शुरू में एक यहाँ पे वर्णित किया गया है कि एंड्रू मैनसन सज्जन हैं जिन्होंने अभी हाल में ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म की है। जब वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मॉर्गन अपनी पत्नी को दिखाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। वह 20 साल में पहली बार माँ बनने जा रही थी। लंबे व कठिन संघर्ष के बाद लगभग 1 घंटा बीत जाता है। सुबह जाके बच्चे का
नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो बच्चा बेजान था। एंड्रयू एकदम वाजिबी कि घबरा जाता है एकदम। उसकी माँ की तरफ देखता है जिससे तत्काल ही इलाज की ज़रूरत थी। वो बच्चे को नर्स के हाथों में दे देता है और पहले माँ की तरफ ध्यान देकर उसको हर संभव इलाज देने का भरसक प्रयत्न करता है। और वह एकदम ही बेसुध पड़ी थी उस हालत में। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटती है। वो बच्चे की तरफ देखता है। बच्चा तो माय गॉड निर्जीव था। बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं थी बच्चे में, नवजात शिशु में। लेकिन फिर भी वो अपना इलाज जारी रखना रोकता नहीं है। अंततः ज़बरदस्त सफलता एंड्रयू को मिल जाती है और जैसे ही बच्चे में हलचल देखता है, संवेदना की झलक देखता है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स मतलब चैन की सांस उसमें आ जाती है। वो बच्चे को नर्स को दे देता है। उसे बहुत संतुष्टि मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत कुछ अच्छा हासिल किया है। देखिए, नौजवान डॉक्टर एंड्रयू ने काफ़ी सराहनीय काम किया था। उसने यह शब्द तब कहे जब वो बेजान से बच्चे में जान डालने में कामयाब हो गया, जो कि शुरुआत में असंभव लग रहा था। उसने एक अधेड़ उम्र की महिला को प्रसव कराने में मदद की थी। उसने ये शब्द असंभव कार्य के पूर्ण होने पर गहरी संतुष्टि की भावना से कहे थे। और उसने जितना अपनी चिकित्सक की पुस्तकों से ज्ञान पाया था ना, वो सब कुछ लगा दिया। इन शब्दों का अर्थ है कि ईश्वर मरीजों में जान डाल देते हैं, डॉक्टर एक माध्यम मात्र है। एंड्रयू ने इस तथ्य की इन शब्दों से जानकारी दी है। आप विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इसको तरी से पढ़ें। और ऐसे में एंड्रयू को लगता है कि शादी एक खूबसूरत व आराम की स्थिति है। वो क्रिस्टीन से प्यार करता था। दिल और दिमाग के अंतर द्वंद्व से चलने से वो क्रोधित और भ्रमित सा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आई थी उस लेडी की डिलीवरी कराने में। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सफल बनाया। एक नवजात शिशु, निर्जीव शिशु जो बेजान पैदा हुआ था, उसका इलाज करके उसमें जीवन डाल दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई और असलियत में डॉक्टरों द्वारा इलाज करने में बहुत अंतर होता है। यह कहानी से पता